Okay, we have started the chapter chemical reactions and equation. And in last class we have completed about the chemical reaction. Now the next topic is chemical equation. Before discussing what is chemical equation, we have to understand the meaning of two terms that were reactant and next one product. Now reactant, the substances which take part in chemical reaction. वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे उनको रिएक्टेंट बोलते हैं एंड प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन we have to understand the meaning of reactant and product. तो जो substances किसी भी chemical reaction में take part करेंगे they were considered as reactant और जो भी नया substance बनेगा that is considered as product. Now what is chemical equation? The symbolic representation of any chemical reaction, किसी भी रिएक्शंस का सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स magnesium oxide. This is the word equation. Now we can represent this reaction by using the symbol. In 9th class we have learned the symbols of the various elements. For magnesium the symbol used is Mg. M is capital and G is small. Plus oxygen is represented by O2 and now it will give magnesium oxide and the symbol of magnesium oxide is MgO. Now we have to balance the reaction. So this was the chemical equation. The definition of chemical equation is the symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation. Here Mg and O2 are reactant क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं दे वर कंसीडर्ड एज रिएक्टेंट। हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट व्हाइल द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। Magnesium oxide is product. Now chemical equations are of two types. First is balanced chemical equation and second one is unbalanced chemical equation. Now balanced chemical equation क्या होती है? Balanced chemical equation वो chemical equation होती है जिसमें number of atom is always equals to the number of atoms present in reactant is always equals to the number of atom present in product. For example कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल है। तो हियर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट
is equal to the number of atom present in product. Both are equal. That's why it is considered as balanced chemical equation. Now next one is unbalanced chemical equation. For example, here we have taken the example of magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Here we can see in reactant magnesium had one atom is present and product one atom of magnesium is present, but ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, तो इट इज कंसीडर्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो अनदर वर्ड यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, why we need to balance unbalanced chemical equation, why we need to balance an unbalanced chemical equation. तो हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो आंसर इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. We have studied the law of conservation of mass in 9th class. Law of conservation of mass was given by Lavoisier in year 1774, and according to this law, mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction. It means that total mass of reactant is always equals to the total mass of product. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे ये बोलता है कि हम ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसका मतलब ये है रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा. इसलिए हम हमेशा स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. I will explain you with the help of example how to balance an unbalanced chemical equation. Now here we have taken the example. Hydrogen oxygen के साथ react करता है and it will form water. Now you can check easily. Reactant में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने बता दिया बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे बोलता है ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा. तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वो एटम लो जिसका मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट है. तो हियर वी कैन टेक द ऑक्सीजन. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो इसका सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो फर्स्ट वी बैलेंस द ऑक्सीजन बाय प्लेसिंग 2. और कभी भी हम बैलेंस करेंगे तो नंबर शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड, सिंबल ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का जो सिंबल है नंबर को हम उसके आगे लिखेंगे, कभी भी हम इसको नीचे इसके सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे. अगर हमें ऑक्सीजन को 2 करना है तो हमने H2O के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ ऑक्सीजन बिकम 2, बट हियर द कंसंट्रेशन और द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल आल्सो इंक्रीजेस. 2 2 जा 4. तो अब रिएक्टेड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है. नाउ हियर वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन by multiplying it by 2. Now you can check reactant में 4 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी अब 2 मॉलिक्यूल है. Now this reaction is balanced. Now next example, Fe plus O2.
आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्म्स Fe3O4 और बना रहा है ये Fe3O4। नाउ चेक, सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लेंगे कौन सा मॉलिक्यूल, Fe3O4। इसमें आपने चेक किया ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो फर्स्ट वी विल बैलेंस द ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ हियर चेक iron is 3, now multiply it by 3, so this reaction is also balanced. Now next example, PbNO3 का whole twice plus Ki, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ एंड फॉर्म्स PbI2, लेड आयोडाइड। इसको हम पढ़ चुके हैं प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन में, इसका येलो PBT बनता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड सब्सटेंस। एक सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इट मींस अगर हम दो लिक्विड को रिएक्ट करते हैं और हमें इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट के लिए वर्ड यूज होता है PPT प्लस KNO3। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। यहाँ पे चेक, NO3 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर नाइट्रेट का सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। नाउ चेक हियर, आयोडाइड इज 2 और यहाँ पर आयोडाइड सिर्फ 1 है, मल्टीप्लाई इट बाय 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चेक, लेड का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी लेड सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। NO3 कंप्लीट नाइट्रेट मॉलिक्यूल आई एम टेकिंग, तो नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये नाइट्रेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स है। पोटेशियम 2 प्रेजेंट है यहाँ, पोटेशियम यहाँ भी 2 हो गया, आयोडाइड यहाँ 2 है और आयोडाइड यहाँ भी 2 हो गया। तो नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हियर वी कैन, आई विल गिव यू द मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, so in this way we can balance the unbalanced chemical equation. And why we need to balance the unbalanced chemical equation or skeletal chemical equation? Because of law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. It means total mass of reactant is always equals to total mass of product. Now moving ahead, I want to tell you the meaning of catalyst. What is the catalyst? अब हम अपनी केमिकल रिएक्शंस में कैटालिस्ट का यूज करते हैं। एक्चुअली कैटालिस्ट होते क्या है, हमने बोला अगर हम पानी में चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में अगर हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर हम शुगर को स्टेयर हिलाएं ना तब भी शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, बट अगर हम उसे हिलाते हैं तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि चीनी जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो इन द सेम वे कैटालिस्ट also increase the rate of reaction, और कभी कभी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। अगर हमें खाना बनाना है, जब तक हम खाने को आग में नहीं रखेंगे या बर्न करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं पकेगा। इन द सेम वे कैटालिस्ट प्ले देयर रोल। कैटालिस्ट को ना ही हम रिएक्टेंट में कंसीडर करेंगे ना ही प्रोडक्ट में। तो कैटालिस्ट आर नाइदर रिएक्टेंट nor product, but they are added in the reaction, to speed up the rate of reaction, or reaction will take place in their presence.
तो कैटालिस्ट ना ही रिएक्टेंट होते हैं ना ही प्रोडक्ट होते हैं, इनको रिएक्शन में डालने का मतलब है या तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, और कभी कभी रिएक्शन इनकी ही प्रेजेंस में होती है। जब तक हम कैटालिस्ट को ऐड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। दैट वाज द रोल ऑफ कैटालिस्ट। तो ना ही कैटालिस्ट को हम रिएक्टेंट में कंसीडर करेंगे ना ही प्रोडक्ट में कंसीडर करेंगे। इनको रिएक्शन में डालने का मतलब है इससे इनको डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। तो दिस वर द रोल ऑफ कैटालिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी मेक अवर chemical reaction equation more informative, chemical equation more informative। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, हमसे पूछता है राइट एनी टू वेज बाय विच वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो हम अपनी केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज by writing the physical state, by writing the physical state, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यूज किया है हम उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। फॉर सॉलिड इट कैन बी डिनोटेड बाय एस, फॉर लिक्विड it is represented by small n, for gaseous state it will represented by G, or we can place this symbol, gas is evolved in upward direction so we can use this symbol also for evolution of gas। next precipitate, PPT के formation के लिए downward symbol will be formed, it is in the solid form, सॉलिड है तो वो कहां बनेगा, बॉटम में शिफ्ट होगा, इसलिए फॉर प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो विल बी रिप्रेजेंटेड। और वन मोर स्टेट इज यूज्ड दैट वाज एक्वस, और एक्वस वाज रिप्रेजेंटेड बाय AQ। अब एक्वस स्टेट होती क्या है, अगर हमारे पास जो मिक्सचर है वो सॉलिड फॉर्म में है और हम उसको पानी में डिसॉल्व करके उसको सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट स्टेट इज नोन एज एक्वस, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द सिंबल AQ। Now first way to make our chemical equation more informative is writing the physical state। हमें क्या लिखना है इसका physical state। solid state को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, liquid state को small l से, gaseous state को small g से, precipitate को downward arrow से, और aqueous state को AQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और here we can also use the symbol for heat। अगर हमें हीट कर रहे हैं रिएक्शन को तो वी कैन राइट द सिंबल ट्राइंगल और डेल्टा का सिंबल यूज करेंगे दैट रिप्रेजेंट द हीटिंग। नाउ सेकंड वे टू मेक आवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द नेसेसरी कंडीशन शुड बी रिटन। तो अब जो भी नेसेसरी कंडीशन है, जिस कंडीशन में मींस किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, तो जो भी नेसेसरी कंडीशन है या जो भी हम कैटालिस्ट यूज करेंगे उसको भी हम मेंशन करेंगे, तो इससे हमारे केमिकल रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो द नेसेसरी कंडीशन शुड बी रिटन, तो नेसेसरी कंडीशन शुड बी रिटन, नेसेसरी कंडीशन should be written above or below the arrow, should be written above or below the arrow। तो जो भी नेसेसरी कंडीशन है उसको एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे, और below the arrow, तो एरो के ऊपर और नीचे हम नेसेसरी कंडीशन को मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, you all know about the photosynthesis reaction। photosynthesis की रिएक्शन, photosynthesis में क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सनलाइट होनी चाहिए, और दूसरा क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। तो दीज वर द नेसेसरी कंडीशन, इसलिए हमने इन नेसेसरी कंडीशन को एरो के ऊपर और नीचे लिख दिया। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज in gaseous state, water is in liquid state. It will form C6H12O6 aqueous state, प्लस क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज गैस, और वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय द अपवर्ड एरो। तो दिस वाज द रिएक्शन which is more informative than previous one we use. So carbon dioxide, here we can understand the complete reaction. कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। हमें ग्लूकोज मिल रहा है व्हिच इज इन द एक्वस फॉर्म, वाटर में डिसॉल्व है, दैट्स व्हाई एक्वस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है व्हिच इज आल्सो द गैस। तो दिस वे वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशन more informative, first by writing the physical state, and second one by writing the necessary condition, and necessary condition should be written above or below the arrow.